ایک بادشاہ، ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوائیں جھک جاتی، پرندے اس کے لیے پیغام رسائی کرتے اور جنات بھی اس کے تابع تھے۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو حیرت اور تجسس کی دنیا میں لے جائے گا۔ تو کہانی کے ایک ایک لمحے کو غور سے سنیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرست بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ و کلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بر تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کر کے گزر بسر کرتے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جوں پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے تراشا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پار پھیلا دیتے تھے جس سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر متعلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ پورے اجزا و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے، یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر لیتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتے تھے۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار کوفسند پکتے اور اللہ کی مخلوق شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتی پیتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پوروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی
फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ऐ रब, तूने हजरत सुलेमान को जैसा मुल्क और हशम दिया, ऐसा किसी और जिन्नो बशर में किसी को नहीं दिया। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैंने सुलेमान को हिफ्तो कलीम की बादशाही अनायत की है और उसको नबूवत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गुरूर तकब्बर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इनको हवा पर ले जाकर जमीन पर डाल देता और फिर इनको निस्तो नबूद कर देता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कलाम सुना तो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने उनके तख्त को जमीन पर उतारा जहां चींटियों की बस्ती थी। तख्त सुलेमानी को देखकर चींटियां खौफजदा हो गईं। इस वाकया का तज़किरा कुरान में इस तरह है, यहाँ तक कि जब पहुंचे सुलेमान चींटियों के मैदान पर तो कहा एक चींटी ने, ऐ चींटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुमको न पीस डाले सुलेमान और उसका लश्कर, और फिर उनको खबर भी ना हो। ये चींटी अपनी कौम की सरदार यानी शामूर थी। उसकी बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने शामूर को अपनी हथेली पर रख कर पूछा, ऐ शामूर, तुमने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने अपने गारों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुल्म देखा है? शामूर ने कहा, ऐ नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने अपनी हिफाजत के तौर पर ऐसा किया है कि कहीं आपके घोड़ों के टापों तले चींटियां न कुचल जाएं। हजरत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम अपनी चींटियों पर ऐसी ही शफकतें किया करती हो? शामूर ने कहा, जी हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं इनकी सलामती का ख्याल रखूं। तुम्हारे साथ कितनी चींटियां रहती हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा। शामूर ने बताया कि 40,000। उस पर हजरत सुलेमान ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी? चींटियों की सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उड़ाती है, तुम इस पर बैठे हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ है। हजरत सुलेमान ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें ये अकल किसने सिखाई? शामूर ने जवाब दिया, ऐ सुलेमान, जिस अल्लाह ने तुम्हें अकल अता फरमाई उसी ने हमें अकल से नवाजा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे चंद मसाइल पूछूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? शामूर ने कहा, ऐ सुलेमान, तुमने अल्लाह ताला से सवाल किया था, कहा, ऐ परवरदिगार, मग़फ़रत कर मेरी और बख्श मुझको ऐसा मुल्क कि नालायक हो किसी को मेरे पीछे, तू ही है सबको बख्शने वाला। ऐ सुलेमान, तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, जबकि हसद करना पैगंबरों की शान के खिलाफ है। तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि खुदावंद क़ुद्दूस सारे जहान का मालिक है, वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तू बड़ी दाना और अक्लमंद है। शामूर ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, तुम भी अपनी राया की निगरानी करो और अपने अदलो इंसाफ से राया को खुश रखो, जालिम से मजलूम का हक दिलवाओ। मैं तो बेचारी ज़ाइफा और मस्कीन हूँ, फिर भी अपनी राया की हर रोज़ खबर लेती हूँ और उनका बार उठाती हूँ ताकि कोई भी किसी पर जुल्म न कर सके। शामूर की बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर कहा, ऐ परवरदिगार, तेरी कुदरत बेइंतहा है और तू ही बेशक अज़मत व बुजुर्गी के लायक है। कुरान हकीम की सूरत सबा में इरशाद बारी तला है, और जिन्नों में से वो थे जो सुलेमान के सामने खिदमत अंजाम देते थे और उसके परवरदिगार के हुक्म से, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे और हम उसे दोज़ख का अजाब चखाएंगे। वो इसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता था, किलों की तमीर, हथियार और तस्वीर, और बड़े बड़े लगन जो हौज़ों की मानद थे, और बड़ी बड़ी देगें जो अपनी बड़ाई की वजह से एक जगह जमी रही। ऐ आल दाऊद, शुक्रगुजारी के काम कर, और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन और जानवरों को मुसख्खर कर दिया था, और वो सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया फरमान थे। उनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर इसमें आज़म गुंदा हुआ था, जिसकी तस्वीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जिन्नों परियां सब उनके पास खींचे चले आते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत वसी हो गई थी
उन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज मामूल के मुताबिक आप कज़ाए हाजत के लिए बाहर गए और अपनी अंगूठी एक लौंडी के हवाले कर गए। उनके जाते ही देवों के मुल्क का बादशाह हमूद लैस वहां आ गया। उसने लौंडी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्त सुलेमानी पर जा बैठा। उसी अंगूठी के सबब सारा कारोबार सल्तनत चल रहा था। चनाचा अंगूठी पास ना होने की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छीन गया और वो अंगूठी दोबारा पाने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। चलते चलते वो एक रोज बनी इसराइल के एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। आप बहुत भूखे प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा, कौन है? हजरत सुलेमान ने जवाब दिया, मैं हूँ जिसकी दावत करना लाजमी है। खातून ने कहा, मेरा शौहर घर से बाहर है, उसकी गैर मौजूदगी में मैं किसी गैर महरम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ, जब मेरा शौहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर उसके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग में कहीं से एक नाग निकला और आपके करीब बैठकर पहरा देने लगा। उस खतून का शौहर बाग में आया तो ये मंजर देखकर परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? बीवी ने बताया, ये मुसाफिर है और आपके इंतजार में ठहरा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो नाग वहां से हट गया। औरत का शौहर आपसे बेहद मुतासर हुआ और उसने आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो आपने कबूल कर ली। आपने उस शख्स की बेटी से शादी की और 3 रोज वहां क़याम करने के बाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहां से रवाना हो गए। इधर आपके तख्त पर हमूद लैस काबिज था, जो जिन्नात में से था। वो हजरत सुलेमान अलैहि का हम शक्ल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही उसकी हरकतों से लोगों को शक हो गया कि वो हजरत सुलेमान नहीं है। चनाचे उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर की कि हमूद लैस को तुरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा। हमूद लैस तुरात तो ना पढ़ सका, जिस पर और लोगों ने तुरात पढ़ना शुरू कर दी। हमूद लैस घबरा गया। वो कलामे इलाही सुनकर वहां ना ठहर सका और फौरन गायब हो गया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में फेंक दी, जिसे एक मछली निकल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज दरिया पर गए तो वहां चंद मछेरे मछलियां पकड़ रहे थे। आपने देखा तो आप भी एक आदमी के साथ मिलकर मछलियां पकड़ने लगे। कुदरत खुदाबंदी से उनके जाल में वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी निकली थी। आपने उस आदमी से वो मछली पकाने के लिए खरीदी और घर लाकर अपनी बीवी को दी। बीवी से फरमाया, इस मछली को आज शाम पका लेना। आपको बिल्कुल मालूम न था कि आपकी अंगूठी किसी मछली के पेट में है। जब आपकी बीवी ने मछली का पेट चाक किया तो उससे अंगूठी बरामद हुई। बीवी ने अंगूठी आपको दिखाई तो आपने अंगूठी को फौरन पहचान कर उंगली में पहन लिया। अंगूठी हासिल होते ही आपका तख्त व ताज आपको वापस मिल गया। आपने उसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा, जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह हुकूमत करने लगे। यूं एक अहद खत्म हुआ, लेकिन इस कहानी की गूंज आज भी जमाने में सुनाई देती है। सोचें, अगर कुदरत चाहे तो इंसान को कैसी ताकतें अता कर सकती है, लेकिन हर ताकत के साथ आजमाइश भी आती है। क्या हम अपनी नेमतों का सही इस्तेमाल करते हैं या कहीं हम भी अपनी आजमाइश में नाकाम हो रहे हैं? जवाब आपके दिल में छुपा है। वीडियो के आखिर में आपको याद दिलाएं, रोशनी के मुसाफिर हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद ऐसी हकीकत से जुड़ी कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।